Assalamu alaikum. Hello everybody. I'm here to express a bit of my emotions and my experience today in today's video. Today is the 13th day of the suicide of the superstar Sushant Singh Rajput. Yes friends, not a single note from the Mumbai police till date to understand what is the stage of the case in spite so many leading evidences with them. Maybe they are trying to hush up the matter by letting the public cool down their anger, their aggression. Anyways, we will continue doing our say. How I'm involved in this, why I feel like this. I'm not a fan, I'm not a follower, but I'm a well-wisher. And the teacher and the activist within me just doesn't allow me to accept that this superstar, this youth has committed a suicide. Friends, I'd like to go back a little bit. In 2012, 12th April 2012 was a Sheena Bora murder case in which Khar police station cracked in 2015, and the two elite people were behind the bars, only behind the bars because the police was under tremendous pressure, but the public and the media did not spare it. And the Mumbai Commissioner of Police in fact was transferred also for this case. Similarly, आज फिर अप्रैल में 14 अप्रैल में 2020 में 5 साल बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए चैलेंज आया है और मैं चाहूँगी कि बांद्रा पुलिस स्टेशन एंड डीसीपी एंड एडिशनल सीपी कोऑपरेट with all the evidences and give a fair trial. Now, why do I say this? Why am I connecting this? Because I feel that this place is full of white collar crime, जहाँ कुछ भी हो सकता है. मेरे खुद के साथ एक एक्सपीरियंस है जब मैं एक मर्डर केस को परस्यू कर रहे थे. आपको कोई बहुत बड़ा आदमी या एलिट आदमी होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ये एरिया में. आपके पीछे बैकिंग अगर किसी बड़े लोगों की रहेगी तो आप बड़ा बड़ा क्राइम करके यहाँ से निकल सकते हैं. ये एरिया ऐसा है. तो हम हमारा काम करते रहेंगे और हम हमारे तरफ से जो भी अच्छा हो सकेगा या दुआ मांगेंगे या एविडेंसेस के लिए या पूछेंगे पुलिस से कि क्या हुआ है, वरना तो ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, कोई भी किसी के ऊपर हाथ साफ करके चला जाएगा. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम बैक. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी एंड नाइदर एम आई सेइंग any names to anybody, but definitely there was something abetting this person, this young hero, that led to his suicide, which cannot be ignored. Mumbai police is considered as the best, like a Scotland Yard they compare it. अरे यहाँ मुंबई में here is the body and there is the head, they just connected within hours and just come up with a conclusion. Kidnapping cases मेरे सामने मेरे खुद के pursue किए हुए within 48 hours they have brought it back after I started pushing it. And today it's the 14th day and I don't hear anything from them, and it's really very disturbing. But please understand, the family, the friends, the followers will not forgive and not forget. This is not an issue to just let go and say कि okay चलता है. Yes, nepotism बोलो, rivalry बोलो, jealousy बोलो या कुछ भी ऐसे शब्द बोलो जो एक हर्टिंग इन्फीरियर फील करवाते हैं लोगों को, ये हर फील्ड में रहता है. ये हम तोल के बता नहीं सकते कि कौन से फील्ड में ज़्यादा है. यस, लेकिन मैंने फिल्म इंडस्ट्री में इस चीज़ को ज़्यादा देखी हूँ. मैंने एक आधे दो आधे केसेस में इस चीज़ को होते हुए भी देखी हूँ विद इन माई सर्कल. सो आई एम हैविंग ऑल दिस प्रूफ विद मी विच वे पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स. हमको क्या करना है हमारे लाइफस्टाइल में इस चीज़ पे अगर हम झेल रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर फैमिली बॉन्डिंग शुड बी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. यू शुड हैव सिलेक्टिव फ्रेंड्स. हमको ये जो हम फेसबुक में बनाते हैं ना 5000 फॉलोअर्स, ये सब कुछ नहीं. आप देखो रेस्ट इन पीस करके वो रेस्ट इन पीस ही है, उसके बाद लोग आगे चलते जाते हैं, भूल जाते हैं सब लोग. लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स जो आपने स्कूल ईयर्स में, कॉलेज ईयर्स में बनाए हैं, वही आपके फैमिली और फ्रेंड्स है. वर्क प्लेसेस में आपका कोई फ्रेंड नहीं है. वो आपके कलीग है, वो आपके राइवल्स है, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं. यू डोंट मेक फ्रेंड्स इन योर बिजनेस प्लेस. मैं अपने टीचिंग फील्ड में भी अपने कलीग से हमेशा कहती रहती हूँ, आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, नोबडी इज़ माई फ्रेंड हियर, ऑल ऑफ अस आर कलीग्स. हुई कहीं ना कहीं किसी भी मोड पे ये साबित हो ही जाता है. सो थोड़ी सी रियलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. हाँ, जब हम ये चीज़ फेस करते हैं उसको झेलना कैसे. सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बेइज्जत हो के, जलील हो के आप अपने सहम के वापस आ जाओ. नहीं, दिमाग में रखो, लेकिन हाँ अपना रास्ता बदल दो.
किस तरीके से वो इंसान को जवाब देना है वो आपके ऊपर है, कब देना है वो भी आप तय करेंगे, वो कोई आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन ज़िंदगी में अपने काम के अलावा अपने कोई पैशन रखो, हॉबी रखो जो आप साइमल्टेनियसली परस्यू करते हैं। इससे क्या होता है, अपना माइंड फ्लक्चुएट होता है और हम डिवाइड करते हैं अटेंशन स्पैन डिवाइड करने में हम मसरूफ़ रहते हैं ज़िंदगी में। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। वो फ्रेंड्स रहेंगे आपके जो आपने जिसको कहा और उसने दिल पे ले लिया बात कि माय फ्रेंड इज़ नॉट ओके टुडे, वो आपको एहसास नहीं दिलाएगा कि वो आपको उस चीज़ से बाहर निकाल रहा है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जब ये इंसान भी अगर कहते हैं डिप्रेशन में था, इसके फ्रेंड्स इसको कैसे छोड़ दिए, इसके फैमिली इसको कैसे छोड़ दी। और वो जो लोग आज बड़े बड़े लोग जो रियलिटी शोज़ में पैनलिस्ट बन के बैठते हैं, जज बन के बैठे रहते हैं, खामोश है। हाउ डू यू एनालाइज थिंग्स? कांट यू कम अप एंड स्पीक? आई एम श्योर यू नो थिंग्स. I don't know about anybody else. I know that the police knows a lot of things. When it comes to all these things that are happening in our personal life, how will I connect it? मेरा मानना ऐसे लोगों को ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये थोड़े से यहाँ से कम रहते हैं, नाखुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फेलियर रहते हैं या आपके साथ compete नहीं कर पाते हैं, इसी तरह से ये ऐसी नीच हरकत करते रहते हैं। इसी वर्ड को मैं यूज़ करूँगी। I'm sorry to use it, but it's quite painful to see when a person just dies and commits suicide like this. आप नहीं करना ये काम, क्योंकि आप उस इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे? जवाब आप अपनी तरीके से दो, इक्वेशन आप ज़रूर सेटल करना अपने ढंग से। ऐसे बोलना चाहिए, बस खेल तुमने शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे इसको। तो वो वक्त भी आपका, टाइम भी आपका, तरीका भी आपका और प्लान भी आपका। There's nobody else in this. How you do it is up to you. But don't feel bad and reject it and all. Move on. Keep a passion for yourself and a hobby simultaneously and a double profession with you which keeps you occupied. Keep your family bonding. Keep your friends bonded with you. Rivalry और ये सब jealousy और envious तो सब जगह है, सब जगह। आप ये सोचेंगे हमारे टीचिंग फील्ड में नहीं है, बहुत है, यहाँ भी रहता है ये सब चीज़ें। Try to keep yourself occupied. When you come back home, try to give yourself 10 minutes, 15 minutes to yourself. Relax. Don't do anything if you want. Or pursue the things. Like जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ कि मुझे singing और listening to songs, reading अच्छा लगता है, तो मैं बस वही करती हूँ। या आराम से maximum time spend करती हूँ sleeping. I love to lie down quietly and just shut my brains. I don't want to think anything. And I just relax for the next moment. I try to make my next moment, because you can't go on brooding on it and saying that life is bad. आप अपना रास्ता बदल दो। Believe me, जो इंसान ने आपको एक बार हर्ट किया इस तरीके से या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर लिया है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। उसको फॉरगेट नहीं कर सकते हम और फॉरगिव भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना रास्ता, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे। अपनी लाइफ लेके, जान दे के, दुखी होके कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ने एक ज़िंदगी आपको दी है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, फ्रेंड्स, आप किसी को नहीं दे सकते। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ, यू कांट लव एनीबडी। इन शॉर्ट आई टेल यू, you have to have an attitude in life, but an attitude without an ego. An attitude tells you to move ahead. An attitude which makes you say, जो होता है अल्लाह की मर्जी, अच्छा ही होगा। आप ये थोड़ी चीज़ें मान के चलोगे, फैमिली फ्रेंड्स बॉन्डिंग अपनी रखोगे, मूव ऑन इन लाइफ का नज़रिया रखोगे, yes, plan it out for yourself how you're going to deal with that person. Don't forget, don't forgive, don't ignore, but don't brood. Don't feel sorry for yourself. अपने आप को कमज़ोर समझ के, क्योंकि ये लोग तो आपकी दुखती रग पे हाथ रख के आपको दुख देंगे ही। आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप अपने आप को कम क्यों समझ रहे हो? These are all crazy people in this world. ये नाखुश है अपनी ज़िंदगी में, यहाँ से खाली, मैंने बोला ना आपको, कम। यह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी 10 बार झूठ बोलेंगे, अपने टाइम टेबल की फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से चेंज करते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से चेंज करते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है तो ये देखते हैं कि दूसरे खुश नहीं रहे, क्योंकि शायद इनको ऊपर वाले पे यकीन नहीं हो
और आप यकीन रखो, these such type of people are loners. They die a lonely death. Believe in Allah, believe in Khuda, believe in Bhagwan, believe in your Almighty. And after that, believe in yourself. You have to say, I love myself. And you have to say, I'm the best. You have to say, I will find a way and move on. Let that, आप ये नहीं सोचो कि वो गिल्टी फील नहीं करेगा. आप उसको करते जाएंगे, उसके सवालों के जवाब देते जाएंगे, तो आप उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे. वेल, ग्लैमर वर्ल्ड थोड़ी सी अलग रहती है. यस, ये एक और चीज़ बताऊंगी. ये जो वर्चुअल फ्रेंड्स का किस्सा चालू है ना आजकल, फेसबुक का और इंस्टा का, यहाँ से फ्रेंड्स बनाने का, मैसेंजर, ये सब, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी. ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ. आप कोशिश करो कि आप इससे विड्रॉ हो सकते हैं. यू कैन नॉट बी अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी. The people around you are missing you and you are drifting away from them. Try to come in close contact with your near and dear ones, loved ones. Have a handful of friends. Like I have a very limited edition of friends. And I feel very proud of it. I feel proud of my family who's a backbone. My friends who are I have no words. They are very good supporters of mine. And they are a handful. So cherish the moment that God has given you. Cherish the moment, life that God has given you. And live it up to the fullest without complaining of what anybody is doing to you. They don't deserve you. They don't deserve your company. Just move ahead. You are the best. That is why they are troubling you. Because they are not able to compete with you. I wish everybody all the best. A happy life with a positive thinking. Stay connected to your family and friends. And love yourself. Thank you and Allah Hafiz.